Assalamualaikum, class 7. This is your science lecture. In this lecture, we will read unit number 2, transport system in animal and plant. We will read from page number 15 to page number 20. I am your science teacher, Miss Farina here. Transport system. Transport system, the system in which energy and oxygen are transported to different parts of living thing is known as transport system. It is also called circulatory system. Circulatory system involves the circulation of blood pumped out of special organ called heart through thousands of tubes called blood vessels and transporting fluid called blood. वो सिस्टम जिसमें हार्ट जो है एज ए मस्कुलर ऑर्गन पंप करता है ब्लड को थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब्स जिनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं. Each cell in our body need oxygen and food. It is not possible to take in oxygen and food directly into the body. Our body need a efficient system to take oxygen and digested food to cell to remove carbon dioxide and waste products from the cell. The circulatory system consists of heart, blood vessel and blood. This is the diagram of circulatory system. The heart. Heart is almost size of clenched fist. किसी भी इंसान का जो हार्ट का साइज़ है वो उसकी मुट्ठी के बराबर है, यानी कि हैंड को फोल्ड कर लिया जाए तो उतना. इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ मसल कॉल्ड कार्डिक मसल. इट फंक्शन इज टू पंप ब्लड टू द ऑल पार्ट ऑफ बॉडी. हार्ट हैज 4 compartment called chambers. 2 upper chambers are called atria and lower chambers are called ventricle. There is how the heart pump blood. The heart pump blood by contraction and relaxing. When the heart is relaxed, both sides fill up with blood from the vein, then atria contract. The blood is forced into the ventricle through the valve. A fraction of second later, the ventricles contract. The valve between the atria and ventricle close and blood is pushed into arteries. The heart relax again and fill up with blood. इस तरह हार्ट में पंपिंग जो है बॉडी में ब्लड को करता है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू. जब हार्ट रिलैक्स करता है तो दोनों साइड में जो ब्लड है ना हार्ट की दोनों साइड में आ जाता है वेन्स के थ्रू. फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड वेंट्रिकल में चला जाता है. जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड जो है कैपिलरीज के थ्रू आर्टरीज के थ्रू जो है ना बॉडी में चला जाता है. वन कंप्लीट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड हार्ट बीट. द हार्ट नॉर्मली बीट अबाउट 70 टाइम इन अ मिनट when you resting, but it increase over 200 times a minute during physical activity or excitement. The complete contraction और relaxation को हम हार्ट बीट कहते हैं और ये टाइम जो है हार्ट बीट जो है 70 टाइम एक मिनट में हार्ट जो है हमारा बीट करता है. इसको 72 टाइम भी कहते हैं. बट जब when you do exercise or sometime you are in excitement तो your heart beat rate can exceed about 100 times. Double blood circulation. The human heart circulation is known as double blood circulation because blood passes through the heart twice for each complete circuit of the body. In the lungs, oxygen is absorbed into the heart. Oxygenated blood leaves the lungs and enters the left side of heart through the left atrium and then into left ventricle when contract and pump into the arteries. Blood flow from arteries into capillaries. Oxygenated blood जो हमारे लंग से आता है वो जो है लेफ़्ट साइड में आता है, हार्ट की लेफ़्ट एट्रियम में आता है. फिर वहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाता है. लेफ़्ट वेंट्रिकल से वो आर्टरीज के थ्रू जो है हमारे ब्लड के जो है बॉडी के बाकी टिश्यूज़ में चला जाता है. ठीक है. एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट मटीरियल टेक प्लेस थ्रू थिन वॉल ऑफ कैपिलरीज. गैसेस और न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज जो वेस्ट मटेरियल का होता है वो थिन वॉल ऑफ कैपिलरीज के थ्रू होता है. द कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन. कैपिलरीज वेन बन जाती हैं विच टेक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द राइट साइड ऑफ हार्ट. अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती वो राइट साइड पे आ जाता है हार्ट के थ्रू राइट एट्रियम. पूरे बॉडी से जो है कैपिलरीज और आर्टरीज उन्हें कलेक्ट करके लाती हैं वेन्स के थ्रू और वो राइट साइड पे आ जाता है राइट एट्रियम में. ठीक है. The capillaries join to form vein. ठीक है. The deoxygenated blood back to the right side of heart through the right atrium and go to the right ventricle. फिर वो right ventricle में जाता है through an opening. From right ventricle से deoxygenated blood go to the lungs. lungs में चला जाता है जहाँ पे से ऑक्सीजन को के साथ मिलना होता है. Through pulmonary artery where it is oxygenated. From this blood release carbon dioxide, absorb oxygen and become oxygenated and again enter the left side. वहाँ जाके lungs में वहाँ पे क्या गैसेज एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है और अगेन वो लेफ्ट एट्रियम में हार्ट के आ जाता है थ्रू पल्मोनरी वेन.
बेटे on page book number 17 there is an important topic blood vessel. Blood circulate in body through special network of vessel called arteries and veins. Three types हैं blood vessels की. arteries क्या हैं? arteries are blood vessel that carry blood away from the heart to the body, जो कि हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड लेके जाती हैं. तो लाजमी तौर पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी. Arteries are thick wall but elastic tube. Inner wall are smooth to help easily flow of blood. They are strong and elastic because receive blood from heart at high pressure. High pressure पे उन्होंने हार्ट से ब्लड को लेना होता है, इसलिए इनकी वॉल्स जो हैं हाई प्रेशर की ब्लड रिसीव करने के लिए इलास्टिक और स्ट्रॉन्ग होती हैं. कैपलरीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल नैरो ब्लड वेसल कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन. दे रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम आर्टरीज. अब आर्टरीज से ब्लड कैपलरीज में जाता है. इन कैपलरीज एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है. वॉल ऑफ कैपलरीज आर वेरी थिन. Veins are blood vessels that carry blood to the heart. Their walls are thinner and less elastic than arteries because they transport blood at low pressure. Components of blood. Blood के components क्या हैं? Blood consists of plasma and blood cell. Plasma is yellowish whitish liquid consists of water. Plasma transport करता है substances like carbon dioxide and digested food around the body. Blood cells are three types: red blood cell, white blood cell and platelets. Red blood cell carry transport oxygen all parts of body. The RBCs are disc-like shape, contain a protein called hemoglobin, HBB जिसे कहते हैं. That bind to oxygen. ऑक्सीजन को बाइंड करती है, ठीक है. इसको ये जो है रेड ब्लड सेल्स में होती है. वाइट ब्लड सेल WBC. वाइट ब्लड सेल डू नॉट हैव हेमोग्लोबिन. उनमें हेमोग्लोबिन नहीं होती, रेड कलर भी नहीं होता उनका. आयरन लार्जर देन आरबीसी से बड़े होते हैं. वाइट ब्लड सेल फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया वायरस. वाइट ब्लड सेल अटैक इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म. जो भी हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है तो सबसे पहले वाइट ब्लड सेल जो है उस पर अटैक करते हैं. प्लेटलेट्स आर स्मॉल सेल फ्रेगमेंट मेक इन अ बोन मैरो. बोन मैरो में बनते हैं, फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में है. प्लेटलेट्स हेल्प टू सील द वोन ड्यूरिंग इंजरी. कोई भी आपको जख्म वगैरह बन जाता है तो ये उसके हीलिंग करने में हेल्प करते हैं, ब्लड को रोकने में हेल्प करते हैं. जी कंप्लीट कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम हार्ट बीट कहते हैं. और ये टाइम जो है हार्ट बीट जो है 70 टाइम 1 मिनट में हार्ट जो है हमारा बीट करता है. इसको 72 टाइम भी कहते हैं. बट जब व्हेन यू डू एक्सरसाइज और सम टाइम यू आर इन एक्साइटमेंट तो योर हार्ट बीट रेट कैन एक्सीड अबाउट 100 टाइम. Heart diseases. Heart needs food and oxygen to keep working properly. Arteries which supply blood carrying food and oxygen to heart are called coronary arteries. वो arteries जो heart को ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई करती हैं coronary arteries होती हैं. These arteries become blocked, result in heart diseases. Cholesterol, a fatty substance, can stick to the wall of an artery and make it narrow. That slow down the flow of blood in it. कोलेस्ट्रॉल जो है, फैट्स जो है, ये हमारी आर्टरीज के अंदर स्टिक कर जाती हैं और ब्लड का जो फ्लो है उसको स्लो डाउन कर देती हैं. बिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल कैन ब्रेक ऑफ इनटू द ब्लड स्ट्रीम. कुछ उसके पास ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं. एंड ब्लॉक नैरो ब्लड वेसल. दीज ब्लॉकेजेस कॉल्ड थ्रोम्बोसिस. और ब्लड की नैरो वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, इसको हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं. If a coronary artery become partially blocked, the heart muscle get little food and oxygen. अगर कोई partially block हो तो हार्ट के मसल को ऑक्सीजन एंड फूड नहीं मिलती. The result in severe pain in chest cause angina. ठीक, चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो जाती है जिसे आप एंजाइना कहते हैं या हार्ट अटैक कहते हैं. थ्रोम्बोसिस इन कॉर्नरी आर्टरीज कॉल्ड हार्ट अटैक. कॉर्नरी आर्टरी में अगर थ्रोम्बोसिस होगी तो उसको हम हार्ट अटैक कहेंगे. द हार्ट स्टॉप बीटिंग. हार्ट जो है बीट करना बंद कर देता है. बट विद द राइट ट्रीटमेंट द हार्ट कैन बी फोर्स टू स्टार्ट बीटिंग अगेन. लेकिन इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है ताकि हार्ट जो है प्रॉपर वर्किंग कर सके. हार्ट सर्जरी. हार्ट इज़ अ मसल दैट नीड ऑक्सीजन जस्ट लाइक एनी अदर मसल. इट नीड इट सप्लाई ऑफ ब्लड. इट रिसीव इट ब्लड सप्लाई थ्रू आर्टरीज इन द वॉल ऑफ हार्ट कॉल्ड कॉर्नरी आर्टरीज. वही बात होगी कि फैट डिपॉजिट माइट बिल्ड अप इन दीज कॉज ब्लॉकेज. फैट की वजह से आर्टरीज कॉर्नरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है. If coronary artery become blocked, surgeon can bypass the blockage. फिर उस ब्लॉकेज को सर्जन जो है बाईपास के ट्रीटमेंट से रिमूव करते हैं. यूजिंग अ पीस ऑफ वेन टेकन फ्रॉम पेशेंट लेग. ट्रांसफर पीस इज कॉल्ड ग्राफ्ट. पेशेंट की लेग से एक वेन का पीस लिया जाता है और उसके साथ अटैच किया जाता है, उसको हम ग्राफ्ट कहते हैं. द वॉल्स इन द हार्ट कैन वेयर आउट
fail due to diseases. This can be replaced with plastic wall. Walls अगर ख़राब हो जाएं, उनमें फैट तक हो जाएं, तो प्लास्टिक के वॉल से उनको रिपेयर किया जा सकता है. Several things can affect the rate with heartbeat. बहुत सी चीज़ें हार्टबीट को अफेक्ट करती हैं. एंड आर्टिफिशियल पेस मेकर को प्लेस कर दिया जाता है स्किन के नीचे, वो हार्टबीट को कंट्रोल करता है. फॉर सम हार्ट पेशेंट देयर इज़ अ ओनली होप फॉर सर्वाइवल रिसीविंग अ हेल्दी हार्ट फ्रॉम अनदर पर्सन. हार्ट ट्रांसप्लांट होती है जिसमें एक हेल्दी पर्सन का हार्ट दूसरे में ट्रांसप्लांट किया जाता है, लेकिन ये प्रैक्टिस बहुत कम है. द ऑपरेशन टेक 5 hours. More than 50% of heart transplant patient gain an extra 5 years of life. अगर किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाए तो हो सकता है कि उसकी लाइफ में एक्स्ट्रा 5 ईयर का इजाफा हो जाए, लेकिन ये हार्ट कौन देगा? हार्ट जो डोनर होगा तो वो फिर कैसे ज़िंदगी गुजारेगा. लेकिन इसमें बेटे इस तरह होता है कि कुछ एक्सीडेंट वगैरह में कुछ पेशेंट जो सर्वाइव ना कर सके, लेकिन उनका हार्ट थोड़ा बहुत चल रहा हो, तो उसको फौरी तौर पे अगर टिश्यूज़ मैच कर दें तो फिर डोनर जो है ना वो उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है. बट इट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. There is an activity remember and understand on page number 20. Fill in the blanks. आपने इसको blanks को fill करना है अपनी बुक पे. The heart needs food and oxygen to keep working properly. The arteries which supply blood to the heart are called coronary arteries. Cholesterol is a fatty substance that can stick to the wall of artery and make it narrow. Bits of cholesterol break off into the bloodstream and block narrow blood vessel. The blockage is called thrombosis. Severe pain in the chest caused by coronary artery become partially blocked is called angina. The kind of blockage can cause a heart attack. If a coronary artery become blocked, a heart surgeon can bypass the blockage using a piece of vein taken from the patient's leg. This is called graft. Heart valves can be replaced with plastic valves with the help of to control the heartbeat. Receiving a healthy heart from another person is called a transplant. Okay beta, do reading from page number 15 to 19 and do remember and understand page number 18 and 19. Learn these, remember and understand. Thanks a lot.